Hello students, very good evening. As you know, already I started the class 10 science part of the chemistry and completed the chapter number 1 and chapter number 2 and going to the chapter number 3rd, and in this chapter completed the many topics. If you want to watch the video, you can go with the playlist and enjoy the all videos. You have any doubt in any video, you can comment in the comment box. Otherwise, you can WhatsApp it. My WhatsApp number is the 9262301769. You don't call me, you can WhatsApp it. Okay students, if you have any doubt, I will clear your doubt. Okay students, this is done. And also I'm requesting, if you don't subscribe still my channel, you can subscribe it and share all videos with your friends. Okay, and my Instagram and Telegram ID is here @science Sandeep. And you will type in Instagram or Telegram, my ID will become, and you can join it in the Telegram. You can get the PDF notes, and the Instagram you can find the reels, topic wise reels. You can go in Instagram and revise your all topic in the form of the reels. Okay students, let's start today's topic. Today's topic is how do metal and non-metal react. Okay, in your NCERT have the one topic, how do metal and non-metal react. Okay, this is the today topic. Okay, I am taking a reference as NCERT. Okay, don't worry. If you want watch the NCERT videos, you can hear. Okay, you can watch. You are related to the CBSE board, or you are related to the state boards or any other boards, you can watch it. This is the beneficial for everyone, because I am covering the NCERT. NCERT is the standard book. Okay, so let's start today's topic. Okay students, how do metal and non-metal react? Okay, that means how do metal and non-metal react to each other. Okay students, that means कि ये metal और non-metal कैसे आपस में reactions करते हैं, कैसे दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं. जैसे आपका क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, ये कैसे आपस में से मिल जाते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे देखेंगे. सबसे पहले आप लोग फर्स्टली ऑलरेडी यू कंप्लीटेड द क्लास 9th. ओके, आई थिंक ऑलरेडी completed the class 9th and pass out the everyone who is watching the videos. Okay, मतलब कहने का मतलब जो लोग 9th क्लास पास कर चुके हैं वही शायद ये वीडियो को देख रहे हो, या कोई भी देख सकते हैं, बशर्ते कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. इन दिस चैप्टर 9 have the electronic configuration. If you forget, you can go with NCERT and revise the chapter number 9, where which chapter have the electronic configuration. जिस chapter में है उसको revise कीजिए. Okay students, but I will tell some brief introduction here about the electronic configuration. How to make the electronic configuration. Let's start. Firstly, I am taking some noble gas. Okay, which is related to the NCERT. NCERT जो कवर किया वो मैं इधर कवर कर दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ. फर्स्टली मैंने नोबेल गैस ले रहा हूँ यहाँ पे. जैसे कि कुछ नोबेल गैस है, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ऐसे कर ले रहा हूँ. यहाँ पे सपोज कीजिए हीलियम है. ओके, हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेल लिख लीजिए. K cell, this is the cell KLMN. KLMN सेल है. आप NCERT किसी लिए मैं बोला क्लास 9 को रिवाइज कीजिए. दिस इज द सेल KLMN. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द KLMN. ओके, here will we put 2 only. It is completed. Helium and one noble gas is the neon. Okay, this is the atomic number 10. 2 and 8 is the electronic configuration. सारे लोग आउटर मोस्ट में अपना ऐड करना चाहते हैं. बाकी यहाँ पे देखिए क्या होता है. नोबेल गैस हो गया. एक और नोबेल गैस हम लोग लेते हैं आर्गन.
आर्गन भी जो क्या है नोबेल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2, 8 एंड m सेल में जाएगा कौन 8 जाएगा। ओके, दिस इज द की है। एंड आई एम टेकिंग सम मेटल्स। ओके, सम मेटल्स, टेक वन मेटल सोडियम। Sodium atomic number 11 and configuration is the electronic configuration is the 2, 8 and 10 हो गया, एक बच गया is here. And another one magnesium, I am taking magnesium Mg 2, 8, 2. Okay, and another one take the aluminum. Atomic number is the 13, that means 13. Okay, electronic configuration 2, 8, the 3. Okay, and another one you can take another one potassium. Atomic number is 19, 19, 2, 8, 10 हो गया, 9 बचा, तो यहाँ पे 8 होगा, 8 to 10 और 8, 18. One more is come will be cell number n. Okay students, and take the another one calcium. Calcium is the 20 and electronic configuration 2, 8, 8 and 2, 10, 18, 20. Okay, this is the metal. I am taking some non-metals like non-metal, take the nitrogen. Okay, electronic configuration 2 and 7. Okay, K cell, L cell, M cell, N cell. Okay, okay students, sodium, nitrogen, and another one oxygen, fluorine. Oxygen is the 8 atomic number and electronic configuration 2 and 6. Okay, take fluorine. Fluorine is the 9, 2 and 7. Okay, take another one phosphorus P. 15 is the atomic number and electronic configuration 2, 8, 10 and M cell में जाएगा 5. Okay, and if you want you can take another one sulfur. Sulfur is the solar 2, 8 and 6. Another one have the in NCERT chlorine. मैं NCERT में जो लिखा है वही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हम लोग। 2, 8, 8 लास्ट में 8, 8 कर, जब भी यहाँ से K में 2 जाएगा, L में हमेशा 8 जाएगा, 8 जाएगा तभी वो अगला आगे बढ़ेगा, है ना। मतलब 8 फिल कर लेंगे, उसके बाद दूसरा जो बचेगा वो उधर लिखेंगे। अगर यहाँ भी 8 जाएगा तो उसके बाद दूसरा कुछ हम लोग लिखते हैं, 8 लिखते हैं या 18 लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसा जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे आपको, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। वन, आई एम टेकिंग वन कंपाउंड NaCl, sodium chloride, or you can say this is the what? Sodium chloride. This is the sodium chloride, or you can say this is the salt. Okay students, कैसे सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट किए हैं ये हम लोग जानेंगे। हाउ सोडियम एंड क्लोरीन हेयर रिएक्ट, ठीक है, कैसे। आई एम टेकिंग सोडियम, ओके स्टूडेंट्स, and just I told about the atomic number is the 11 and configuration is the 2, 8 and 1. okay, ठीक है। पहले से 2 है, 8 है और यहाँ तक इसका कंप्लीट है। आउटर मोस्ट सेल मतलब जो है वायलेंस सेल होता है, और एक ये हट जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हटा देगा, क्या करेगा, लॉस कर देगा, उसका लॉस कर देगा, उसको हटा देगा मतलब एटम है। मैंने बताया था मेटल क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता हो जो एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक यदि लॉस किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 प्लस, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अपना लूज किया है या क्या किया है, लॉस किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया।
इसका देख लीजिए। अब Cl का देख लीजिए, Cl का इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2, 8 एंड 7। अब देखिए हमने बोला लास्ट में सब कोई अपना चाहता है कि ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा कर लें। 7 है, यदि 1 मिल जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1 था तो 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, गेन करेगा तब इसका कंप्लीट होता, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। भाई क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास क्या होगा, इसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। यदि हमको 8 कंप्लीट करना है, ठीक है, तो 1 को हटा देंगे तो आसानी से हट जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को, है ना। यदि 7 इलेक्ट्रॉन लेने लगेंगे तो एक तो कोई देगा नहीं, दे भी दिया तो हम कैसे लेंगे, काफी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी हमको। और यहाँ देखिए 7 इलेक्ट्रॉन यदि हटा देते हैं यहाँ से, कोई लेने वाला तो होना चाहिए, अगर कोई ले भी लिया तो यहाँ से रिमूव करना 7 इलेक्ट्रॉन को काफी मुश्किल है ना, काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन जो आसानी है वही करेंगे, जो 8 के नजदीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, अपना 8 बना लेंगे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आप लेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आप लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप ले रहे हो, तो आप ले रहे हो तो ये पूरा हो गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, कहीं से ले लिए, ठीक है, 8 हो गया इसका। देखिए लास्ट में 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, है ना, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। आप देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मैंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल है, मतलब ये नॉन मेटल है और एक मेटल है। इतना आपको समझ में आ गया। आप देखिए अब क्या है, कैसे दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सोडियम था, ये तो मैं कन्फिग्रेशन करके दिखा दिया आपको यहाँ पे, है ना। ये सोडियम था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट इसके सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे डॉट से मैं करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन था। आउटर मोस्ट सेल वाला मैं लिख रहा हूँ, बाहरी वाइलेंसी सेल वाला, वाइलेंस सेल जो बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन में कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर 7। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। यदि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका 8 हो जाएगा। इसके पास से क्या था, ये अपना 1 हटा देगा, ये अपना 1 हटा रहा है तो 8 हो जा रहा है इसका, इसको दे रहा है तो इसका 8 हो जा रहा है। एक रिमूव कर रहा है, एक लूज कर दे रहा है, ये जो लूज कर रहा है एक क्लोरीन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ये अपना 8 कर ले रहा है, ये हट जा रहा है 1 तो इसका भी 8 हो जा रहा है। 8 करना है, 8 करना है लास्ट में, है ना, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो ठीक है, ऐसे जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जो है आपका बनता है, क्या बनता है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, Na, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया तो इससे प्लस आएगा, और एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, तो इससे माइनस आएगा, ठीक है, समझ गए। और यही बन जाएंगे क्या, NaCl, 1 प्लस 1 माइनस, दोनों बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। प्लस वाला है, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, ये निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन अपना बाहर भेज करके पॉजिटिव में हो गया, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो गए। दोनों जब निगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो आप एक दूसरे को अटैक करते हैं कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का साझेदारी हो रहा है, आयन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आप बोलेंगे आयन का साझेदारी हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव आपस में साझा करके आपस में मिल जा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ ले रहे हैं। आप जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव कहीं पे भी होगा तो एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, अटैक करता है। तो अटैक करके क्या बना लेते हैं, NaCl, ऐसे जो है ये बनाते हैं। ऐसे जो है मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये जो दोनों आपस में अटैक कर रहा है, फोर्स ही तो लगा रहा है, इसको खींच रहा है, उसको खींच रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यहाँ पे जो खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो कौन से फोर्स होंगे, कौन से फोर्स है एक दूसरे से, Na और Cl किस फोर्स से जुड़ गए हैं, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
Okay, student, this is the electrostatic force. I am telling again. Okay, just I am told this is the sodium and this is the electronic configuration 281. Okay, sodium want complete your octet, that means sodium want to complete the 8, okay, in the last valency shell. Okay, when sodium lose the one electron, it will be completed. Okay, sodium 8 completed, that means octet will be completed. Okay, so this is the lose the one electron, and this is the configuration of the chlorine, and need to the one electron to the chlorine. So one electron gain, one chlorine, one electron gaining here. Okay, and complete the 8. Okay, this is done. So when lose the one electron, sodium lose the one electron, get the positive ions, and chlorine take the one electron and get the negative ion, and after that both take each other, positive and negative, and made the NaCl, and NaCl have the electrostatic force, यानी दोनों कौन सा फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, दिस इज डन. ओके, ये हो गया. चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. एक और एग्जांपल देखिए, फटाफट देखिए खत्म करते हैं. देखिए यहाँ पे MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके, MgCl2 होता है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड. कैसे, आइए देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले आप जानिए मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर. मैग्नीशियम हैव द 12 एटॉमिक नंबर एंड, आप ज़्यादा नहीं, जल्दी मैं करूँगा. 12 एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द 2, 8 एंड 2. देखिए 2, 8, 10 दो बार हो गया, 2 इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 को हटाएगा इसका 8 हो जाएगा. ठीक है, तो यदि 2 को हटा दिया सपोज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, है ना. और क्लोरीन, देखिए क्लोरीन को लिए मैंने क्या बोला था अभी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द 2, 8 एंड 7. okay, and but here are two chlorine, so you'll be need to the 2 electrons. How? Just I'm explaining. Okay, when it will be take 1 electron and made 1 positive, 1 negative ion. When it will be take the 2 electrons, made 2 negative ion. Okay, are you getting? समझ रहे हैं आप. 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 आएगा. सिंपल. अब देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ. दिस इज द मैग्नीशियम. outermost shell have the 2 electron, that means 2. I am showing the dotted point से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम के. इसको मैं क्रॉस से शो करूँगा. देखिए क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना. तो इसके 2, 4, ऑलरेडी इसके पास कितना है, 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है. इस पे भी आपका बाहर कितने हैं, 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे पहले से है. इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं. क्यों हटाने हैं, क्योंकि हटा देगा 2 को तो 8 हो जाएगा. ये आपका 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 1 लेता था तो 2 क्लोरीन 2 लेंगे. एक इस क्लोरीन को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया एक इस वाले क्लोरीन को दे देगा, है ना. अब देखिए इसके भी 8 हो गए, गिन लीजिए 2, 4, 6, 7, 1, 8. इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए 2 हटाने के बाद. अब क्या हो गया, अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस किया है मैग्नीशियम, तो इस पे कितना चार्ज होगा, +2. और क्लोरीन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं आपका 2 क्लोरीन है. कितना क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसलिए इस पे कितना चार्ज आएगा, -2 का चार्ज आएगा. या आप -2 नहीं लिखेंगे तो -1 लिखेंगे. तो यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, या यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा. ठीक है, या सबसे बेहतर यहाँ पे 2 लगा लीजिए, है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे से जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं.
अब देखिए, अब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, इस पे भी दो निगेटिव चार्ज है, इस पे भी दो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जुड़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, बताइए, यहाँ पे दो नहीं होगा, एक ही होगा। यहाँ पे दो आपका क्या लिखेंगे, दो क्लोरीन है। ठीक है, और दोनों पे क्या है, दोनों क्लोरीन पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए MgCl2 ऐसे जो है बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन पहले से था, या आप बोलेंगे दो जो है किसका वैलेंसी है, इसका है, दो इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है ना, इस दो लगने का मतलब हुआ कि एक क्लोरीन दो इधर आएगा ऐसे Mg+2 और एक क्लोरीन पर माइनस है। ठीक है, एक केवल एक दो क्लोरीन है यहाँ पे, है ना, एक ही क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, एक ही क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लेता तब यहाँ पे माइनस होता, -2 होता। ठीक है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए -1 होगा, क्योंकि क्लोरीन अलग अलग है, एक क्लोरीन माइनस लेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा इससे। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लोरीन लिया है, एक क्लोरीन ए लिया। जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ए लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ए लिया है, तो इसलिए -1 ही होगा दोनों पे अलग अलग। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 इसलिए लग रहा है कि 2 इसका वैलेंसी है, 2 ए इलेक्ट्रॉन दिया है तो इधर लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से जुड़ गया। अब देखिए, यदि ऑक्सीजन आप लेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 होगा। इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर के यहाँ पे -2 आएगा O पे, ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट जो है क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है लेकिन दो, एक ही क्लोरीन एक ही है लेकिन वो दो है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे केवल ऑक्सीजन एक है ना, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे दो क्लोरीन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, समझ गए। तो ऐसे दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग माइनस आएगा चार्ज। ठीक है, ओके, तो ये हमें बताना था। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट, I am writing the one definition, transfer of electron from one metal to non-metal. Transfer of electron from one metal to non-metal are known as what? Are known as ionic compound. ओके, मतलब जो एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोलते हैं, या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो ये समझ गए, इतना हमें क्या करना था, इतना आपको समझाना था। ओके, चलिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।